Okay, हाँ now यार, I हमें तो दिख started. रही है। हाँ दिख। Yeah. So, uh, so uh, l- last time we have discussed about the how that the sales life cycle is a working, right? So we have given the overview, and today we are coming on the how the we are making the solution, and inside the solution how we will add the entity and custom entity and creating the form and fields. So this is the power plate uh, power platform environment setting, right? So either you can go from here, there is also the solution part, or either you can go from this make.powerapps.com. This is the default environment. Inside you will go. So there is a first you need to choose the your correct environment. So first you need to go admin. 1 minute. We are using the this module, right? So this is the default environment, which is the Microsoft is already provided. Inside that we have a lot of entities, and the all over the customization they have inside this. So this is also the question while we how many type we have the solution. So one is the default solution. This is the managed solution. We cannot able to export import this solution from one environment to another environment. This will be in every environment we will get while we are creating a new environment. After that we need to uh, add a new solution top up on that what we are doing the customization. So I will create a one new solution. So I need to give the name, sorry, display name, and publisher and version number. So just like I will give, uh, so suppose I'm making for my CRM for digital resume box, right? So I give digital resume box, right? So this is also the name of coming, and after that there is a publisher. So publisher, why we need the publishers? First thing, okay, just like we are already using lot of entity. Suppose we have a account entity, and inside that we have a account name, first name or last name, but we want a something different from the account name, or first name or last name. We make a some common name. So how we will identify, okay, this is the who is the created, is the system created or are we have created? So that's why the publisher coming in a picture. We can define here the prefix, okay, what should be the prefix and what the option set will be started. So this type, every प्रीफिक्स इज अ कमिंग। और दूसरे अगर हम सिनेरियो में कहें, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे हर कंपनी अपने नाम से एक वो बनाती है, क्या नाम, प्रीफिक्स। जैसे अगर मैं डिजिटल रिज्यूम का बना रहा हूँ तो मुझे डीजी डीजी करके आएगा, मतलब 3 डिजिट तुम डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है, जैसे बड़े लेवल पे अगर मैंने अपनी कंपनी का 4 कंपनियों को प्रोजेक्ट दिया है, तो वो अपने अपने पब्लिशर बना सकती हैं और उनमें अपने अपने पब्लिशर के अकॉर्डिंग नाम डाल सकती हैं, तो ताकि पता चलेगा कि कल के दिन कौन क्या काम कर रहा है। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द न्यू पब्लिशर, राइट? सो डिस्प्ले नेम डिजिटल बॉक्स, so same name we will copy here, and prefix is the 3 digit, right? So page, and 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 there is a beacon ऑप्शन सेट वैल्यू मींस ड्रॉप डाउन, जो छोटी छोटी ड्रॉप डाउन होती है ना, यहाँ पे उसे ऑप्शन सेट एक मान के चलो। तो उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, ये वैल्यू हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, और अदरवाइज ये डिफॉल्ट। तो अभी देखो जो हमारा नेम आएगा ना, डिज अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने कोई टेबल बनाई या कोई फील्ड बनाई, तो उसके आगे ऑटोमेटिकली ये लिख के आ जाएगा, इतना अंडर स्कोर तक दिखाई दे रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे दिया 88,000, ठीक है। सो आई विल सेव दिस। क्या बता रहा है ये? स्पेस नहीं आएगा स्पेस हटा दो, स्पेस नहीं होनी चाहिए स्पेस। नेम में नीचे नीचे भाई।
पब्लिशर एक तरह से वो स्कीमा टाइप हो गया या मतलब आइडेंटिफायर हो गया बस। करेक्ट ये करेक्ट प्रोफाइल करेक्ट है, करेक्ट। ये जस्ट लाइक अ प्रोफाइल। अब यहाँ पे जाके वी विल चूज क्रिस्टलिज्म, राइट। और जब आई मीन व्हाइल वी जब भी हम सी आर आई मीन कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका वर्जन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वर्जन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने बनाया 10.0.0, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे या जब नेक्स्ट एनवायरनमेंट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो ये पूछता है कि वही वर्जन रखना है या दूसरा वर्जन बनाना है और कुछ करना है इसके अंदर जो भी ये कस्टम पेज वगैरह डालना है, डिस्क्रिप्शन। अच्छा देखो यहाँ पे आ रहा है ये अनमैनेज टाइप, राइट। तो अब मैंने बोला था ना ये जो डिफॉल्ट सॉल्यूशन है मेरा, ये होता है मैनेज सॉल्यूशन। इसको हम एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन इस वाले को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में एज अ मैनेज और अनमैनेज। अब मैंने इसको क्रिएट किया। तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये हमारा डिफॉल्ट आई मीन डिजिटल रिज्यूम बॉक्स सॉल्यूशन बन गया। अब इसके अंदर मुझे कुछ चीज ऐड करना है तो मुझे खुद से ऐड करना पड़ेगी। अब जैसे मैंने कहा कि या तो मुझे टेबल एग्जिस्टिंग ऐड करना है या न्यू न्यू क्रिएट करना है, ठीक है। अब एक जैसे मिनट मैं अनिल, अनिल एक मिनट। ये अभी जो तूने किया है ये उस जो बेस उनका वो है क्या बोलते हैं सोल्यूशन, उसको नरेट नहीं करता है उसके नहीं जो नहीं नहीं लिखनी नहीं है। नहीं 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 ये तो नहीं नहीं ब्लैंक नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक है है। अभी, बिल्कुल ब्लैंक है अभी, इसके अंदर कुछ नहीं है। मतलब तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ बिल्कुल कस्टम कस्टम कर रहे हैं। हम्म। मतलब जैसे उनके कॉन्टैक्ट्स हो हाँ हाँ। गए, अकाउंट्स हो गए, उनकी रिलेशन वाले टेबल आए नहीं तो उनको यूज नहीं कर पाएंगे अभी। नहीं नहीं, वो नहीं अभी नहीं सर अभी अभी ऐड जो कर सकते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग में जाएंगे ना, तो हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट अब है हम और ऐड अकाउंट है, एग्जिस्टिंग वो करेंगे अब तो अब वो ऐड कर। पूछेगा कि क्या क्या ऐड करना है उसका। अभी जो सॉल्यूशन ओके। बना है वो ब्लैंक सॉल्यूशन है। और नहीं उसके तो ऐड अकॉर्डिंग ही एग्जिस्टिंग में, नेविगेशन आएगा। ऐड हाँ एग्जिस्टिंग में तो मेरे को पता ही नहीं होगा ना कौन सा टेबल किस किस चीज के लिए है। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे अब अकाउंट टेबल ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे ये आई मीन जो भी कुछ ऐड करना है वेब रिसोर्स वगैरह सब कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें। अभी जैसे मैंने कहा मुझे एक अकाउंट टेबल ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं क्या अब मेरा जो पुराने वाले से हम ले रहे हैं जो हमारा मेन सॉल्यूशन है, मैंने कहा मुझे अकाउंट एंटिटी चाहिए, ठीक है। हम्म। पर अभी तक मेरे को तो ये पता ही नहीं होगा ना कौन सा टेबल किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो मैं इंपोर्ट यूज ऐड कैसे करूंगा। वो तो सर रिक्वायरमेंट आएगी, वो तो जब भी पता चलेगा कि जो अकाउंट टेबल एग्जिस्टिंग है उसमें 4 फील्ड हमें ऐड करना है। ओके, ठीक अब है। जैसे मैंने हाँ, अब जैसे मैंने मतलब कहा इन ऐड टेबल की तो पहले पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कौन सा टेबल किस चीज के लिए यूज हो रहा है, फिर ही करेक्ट कर हाँ 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 टेबल वाला एंटिटी जो भी उसको बोलते हाँ 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 एंटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है कि इससे रिलेटेड सब कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा ऐड में देखते क्या क्या आ रहा है अभी। अभी मेरी ये एक टेबल मैंने ऐड कर ली, ठीक है। तो इसके मुझे ना कोई कॉलम आया ना कुछ आया ना रिलेशनशिप आई, ठीक है। एक तो ये अगर मैंने इसको अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसे रिमूव करता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि रिमूव का बटन दिख रहा है इधर पे कहीं, यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जब अगर आप यहाँ से कोई ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है तो डिलीट नहीं होगी, वरना यहाँ पे एक डिलीट का भी ऑप्शन आता है। अगर आपने डिलीट कर दिया तो वॉट एवर यू हैव डन द कस्टमाइजेशन ऑल कस्टमाइजेशन डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। सो आई हैव रिमूव दिस फॉर जस्ट फॉर दिस सॉल्यूशन, राइट। मैं दोबारा से ऐड करता हूँ उसमें सारे उसके रिलेटेड ऐड करता हूँ कंपोनेंट टेबल पे गया। इफ आई ऐड देखो अभी हाँ अब ये हमारे पुराने सॉल्यूशन के जो डिफॉल्ट सॉल्यूशन का सारा रिलेशनशिप वगैरह जो भी इसमें की वगैरह होगी, फॉर्म वगैरह होंगे, सब आ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है सर यहाँ तक।
अब मैंने कहा कि या तो अब वैसे तो मैंने सारे कॉलम ऐड कर लिए, ठीक है। कई जगह पे क्या होता है कि खाली ब्लैंक टेबल ऐड करनी होती है, फिर हमें एक एक करके कॉलम मूव करते हैं, हम पूरी की पूरी टेबल माइग्रेट नहीं करते हैं एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे सर। तो अब जैसे अगर हम पूरा लेके जाएंगे तो उसके ऊपर को डिपेंड बाद में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे इशू आते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वही टेबल का ब्लैंक टेबल ऐड करते हैं, और फिर जो फील्ड चाहिए होती है वो अलग से फील्ड ऐड करते हैं। तो अभी मैंने ये इस टाइप से बना दिया कि ये सारे के सारे भी आप ऐड कर सकते हो एक बार में, और नहीं भी कर सकते हो। हम फिर से जाते हैं, इसे फिर से रिमूव करते हैं। अनिल वो क्या बोल रहे हैं कि ब्लैंक पर टेबल डालते हैं और फिर कॉलम ऐड करते हैं, वो क्या मतलब? हाँ हाँ, क्या है जैसे अभी हमारा एक, क्योंकि डिफॉल्ट सॉल्यूशन हमें सब सारे एनवायरनमेंट में मिलेगा, राइट। हम कोई सा भी नया एनवायरनमेंट बनाएंगे, जैसे ये हमारा डेव एनवायरनमेंट है, ऐसे एसआईटी होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम डिफॉल्ट जो हम सारे के सारे कॉलम लेके जाएंगे तो हो सकता किसी कॉलम पे कुछ अपग्रेड आ जाए, तो फिर वो बाद में दिक्कत करता है। तो लोग क्या करते, जो जो आई मीन वट एवर दे वॉन्ट द फील्ड, ओनली वही फील्ड ऐड करते हैं, पूरा टेबल लेके नहीं जाते रिलेटेड डेटा। हाँ सर। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है। अगर हम्म। सपोज मैंने स्ट्रक्चर पूरा इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो जो उनका फ्रंट एंड है वो तो चलेगा ही नहीं ना। नहीं 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 नहीं, उसके टॉप वन पे चलता है सर सब कुछ, वही मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये किया तो अब मैंने इसे फिर से रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं एक मिनट बताता हूँ। मैं जैसे नई टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने टेबल दी कैंडिडेट, ये क्या दे दिया इन लोगों ने नया यार, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी, पता नहीं क्या है। स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक है ना, लास्ट लास्ट में। हाँ, लास्ट में स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक। कौन लास्ट सा? वाला फर्स्ट नीचे वाला नीचे नीचे स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक नीचे है ना। नीचे वे नीचे जो चार दिख रहे हैं लास्ट वाला, हाँ। नीचे के 4 में से हरी। नहीं, ये इन लोगों ने कुछ अभी नया चेंज किया, ये तो मुझे भी नहीं पता कुछ। ये है ना भाई, यहाँ तो ना क्रिएट टेबल वही है। है ना, ये ना क्रिएट टेबल। कभी भी ट्रेनिंग देते हैं ना, कभी बोलते नहीं है कि मेरे को नहीं पता। नहीं। नेगेटिव ये वर्ड कभी ये बोलने नहीं नया चाहिए। नया ट्रेनर है सर, नया नया हाँ, ट्रेनर है ये। आगे ध्यान रखना है भाई, किसी को भी ट्रेनिंग देते हैं कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलते हुए। फिर बोलते अच्छा हैं कि हाँ। कुछ चेंज हो गया यूआई में, लेट मी चेक एंड हाँ, गेट बैक टू यू। करेक्ट। इस टाइम सर को एक मिनट, वैसे क्लासिक वर्जन पे ओपन चलते हैं। ओके, सो दे हैव चेंज द न्यू यूआई। I will go there in a classic advanced setting. Yeah, this is the classic module. This we are using the before that. So this is the our solution, digital region block, and I have added. Yeah, here we will add a new table. They are changing very fast, so I give here count cust candidate. Student name we need to give as a candidates. अब जब हम ये आई मीन while we creating the टेबल ना के कहाँ पे हमको डिस्प्ले करना है, जो इसकी मॉड्यूल है ना, जैसे सेल्स है, सर्विस है, मार्केटिंग है, कहाँ पे डिफाइन करना है। अगर कुछ भी डिफाइन नहीं करना है तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और है ओनरशिप, राइट। यूजर और टीम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, राइट। ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब ये सब देख सकते हैं, और अगर हमको इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर रूल लगाना है कि जैसे दो मेरे सेल्स यूजर हैं, राइट, जो एंड यूजर है, अगर वो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं दिखाई देंगे, तो हमें उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल लेके चलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा सिक्योरिटी रोल में, ठीक है। और यहाँ से जाके मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी।
This is the actually classic version, sir. Till now, Microsoft, I mean, before 6 months, this is the, we are creating the entity or whatever the customization look doing like this. But recently, they are changing this. They want to deprecate this. हाँ, तो हमें तो अब- नया ही पता होना चाहिए, नए पे करना हाँ पड़ेगा। हाँ, नए पे क्रिएट करना पड़ेगा हमें। राइट। नहीं सर, ढूंढ के रखो, हम लोग को नए पे चाहिए। हाँ, तो हमको यहाँ से एक्चुअली वो वही मैं देख रहा था कि यहाँ पे वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा था। या चलो ठीक है, अभी हमारी कैंडिडेट बन गई ना, ठीक है, बस इतना ही चाहिए था मुझे कि हमारी ये कैंडिडेट एंटिटी बन जाए। चलो यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद सक्सेसफुल मैसेज भी नहीं आएगा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा सर, कुछ नहीं आता है। पब्लिश भी नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पब्लिश जब करना होता है जब हम एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं। अब इसके अंदर देखो कुछ कॉलम हमारे डिफॉल्ट बन के आ गए, ठीक है, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट हमें मिल गया सब कुछ। अच्छा, एक चीज और रह गई थी उसके अंदर जो मैंने नहीं, चलो ठीक है, बाद में बताता हूँ अभी। तो अब इसके अंदर देखो कुछ सारे हमारे फॉर्म भी बन गए, ठीक है, एक हमारा ये मेन फॉर्म बन गया, ठीक है। अब जैसे मैं मेन फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म मुझे कैसे दिखाई देगा। अनिल, वो कॉलम में क्या डिफरेंस है? क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड बाय है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डेलीगेट और उस टाइप के। क्या क्या क्या, एक मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं पीछे। कहाँ पर? कॉलम में। हम्म ये क्रिएटेड बाय ऊपर भी कॉलम है, नीचे भी क्रिएटेड बाय, मतलब इसका क्या कुछ सेपरेट यूज है क्या? मॉडिफाइड बाय नीचे भी? नहीं नहीं, मॉडिफाई बाय तो अलग है, देखो यहाँ पे भी डेलीगेट रहेगा ये। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? दो बार क्यों है? डेलीगेट वाला तो I also need to check, but whatever we have created, I mean, most of the time we using created by only. Created by delegate, I need to check that. ठीक है, आई ठीक है, थिंक कंटिन्यू। नेम में लिखा है, एक तो क्रिएटेड बाय डायरेक्टली आता है, हमें जो सेकंड वाला है क्रिएटेड बाय ऑन बिहाफ, मतलब किसी दूसरे के अकाउंट से अगर लॉगिन किया, ऐसा कुछ रहेगा क्या? Might be, अच्छा अच्छा, एडमिन might से be. क्रिएट करते होंगे तो इसमें आता होगा वो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 फॉर्म क्रिएट होते हैं, एक कार्ट, एक मेन और एक क्विक व्यू। अब हाँ, पहले हम कॉलम पे आते हैं, हम सारे कॉलम बनाते हैं आज, ठीक है। अभी जैसे ये तो हमारे डिफॉल्ट कॉलम है, ठीक है, जो हमारे जैसे हम एंटिटी बनाएंगे वी विल गेट। अब हमको एक नया कॉलम ऐड करना है। हमने कहा यहाँ पे कैंडिडेट कैंडिडेट पैन कार्ड पैन। तो यहाँ पे ये इतने टाइप के डेटा टाइप हैं, ठीक है, किस किस टाइप का डेटा टाइप है और कितनी कितनी हमें लेंथ रखना है। यहाँ पे लेंथ भी आती है कहीं पर, मैक्स लेंथ 100, ठीक है। अभी मैंने एक ये पैन कैंडिडेट पैन कार्ड क्रिएट किया। देखो अब यहाँ पे जो मैंने वो प्रीफिक्स डिफाइन किया था तो डिज अंडरस्कोर ये सब कुछ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसा हम नेम डिफाइन करेंगे ये वाला नेम, यही नेम हमारे सब जगह पे यूज होगा। अब मैंने एक और किया इसमें कैंडिडेट। नेम सेट करने का ऑप्शन नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ही बनाता है। क्या सर? मतलब अभी डिस्प्ले नेम डाल रहे हैं पर नेम वो खुद ही जनरेट कर रहा है, मतलब उसको सेट नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, लॉजिकल नेम जो है ना ये वाला, ये हम जब अगर यहाँ पे कुछ चेंज करें तो वो कर ओके, लेगा। हाँ, मतलब ये ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना आपके हिसाब से? नहीं नहीं, बाद में कुछ मॉडिफाई नहीं होगा सर ये। नहीं नहीं, अभी क्रिएट एक करते टाइम में मतलब। हाँ, क्रिएट करते समय हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने लिखा कौन सा है दूसरा हमारा डेटा टाइप के हिसाब से चलते हैं हम लोग। हमने कहा नंबर, राइट। तो कैंडिडेट एक्सपीरियंस, कैंडिडेट एक्सपीरियंस, कैंडिडेट एक्सपीरियंस दिया मैंने। और ये कहाँ से कहाँ तक नंबर लेना है, नंबर ठीक है। नहीं, और नंबर चेंज नहीं किया। अच्छा, नंबर, ठीक है।
तो ये इतने से यहाँ तक आ गया, तो हमने ये यहाँ पे कैंडिडेट एक्सपीरियंस डिफाइन कर दिया। तीसरा क्या था हमारा? डेट टाइम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट DDOB आएगा शायद, तो ये ऑटोमेटिकली वो बैक एंड में ले लेगा DOB करके, राइट, उतना सब कुछ लोकल। लुकअप में बाद में बनाता हूँ, अभी चॉइस पे आते हैं, ठीक है। डेट डेट जेंडर डाल दो, जेंडर 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 हाँ जेंडर नहीं डाल नहीं, दो, मेल फीमेल हाँ हाँ चॉइस के लिए। अच्छा, चॉइस में भी यहाँ पे दो हैं, देखो, एक है यस नो, एक है चॉइस फील्ड, राइट। तो अभी ये इन लोगों ने एक पहले इसे ऑप्शन, इसके अंदर भी एक और होना चाहिए जो होता है, वो क्यों नहीं दिख रहा? मल्टी ऑप्शन सेट आता था, वो क्यों नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू भी डिफाइन करना पड़ता है। डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम जेंडर होगा, मेल। स्पेलिंग गलत है जेंडर की, GND है। अच्छा अच्छा, ठीक है। So this type we can create the gender and this will be coming as the option set. कुछ हुआ नहीं, वो हम आए थे। Twice none. We created. एक minute, I will go in classic mode and from there I will add this one. So I need to go in classic mode, add one set. Gender आ गया, yeah, so male female this is upcoming, but field. रिलेटेड यूआई से कर रहे हैं, एक वहाँ प्रोग्रामेटिकली नहीं होता है कि मेरे को टेबल जनरेट करना है, उधर से एंटिटी बनाया और पुश किया। हाँ, ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली अभी मेरी कंपनी क्या है ना, ये सब कुछ ऑटोमेशन से कर रही है। अभी जो मेरी कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट है कि सेल्स फोर्स का डेटा उनको CRM में माइग्रेशन करना है, राइट। तो उन लोगों ने पूरा सब कुछ कोडिंग से कर रखा है कि बस सिर्फ आप वहाँ पे सेल्स फोर्स का URL डालो, तो वो सब कुछ जितनी भी अब जैसे एंटिटी है, जो जैसे ये हम कस्टम एंटिटी बना रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ जो सेल्स फोर्स में ऑलरेडी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ बना के आपको दे देगा। तो अभी उन लोगों ने पूरा स्कीमा माइग्रेशन का काम कर दिया है, और अब वो लोग नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो भी कर जनरली क्या सकते। करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब यूआई से करते हैं या प्रोग्रामेटिकली करते हैं? डेवलपर, हाँ, डेवलपर जो होते हैं CRM डेवलपर, वो UI से ही काम करते हैं, ओके। जैसे मैं कर रहा हूँ।
ओके ये इस वाले ऑप्शन सेट में चला गया ये। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक होता है ग्लोबल बट ऑप्शन मान सेट, लो तो अनिल ये अनिल अगर कोई हाँ। ऐसी फील्ड है जो डिपेंडेंट है किसी टेबल पे जहाँ से सारे ऑप्शन लेके आने हैं, मान लो तुम एक कंट्री बोल रहे हो तो कंट्री की एक अलग टेबल है, तो फिर कैसे करोगे इस जगह पे जहाँ पे तुमको ऑप्शन किसी टेबल से एक्सट्रैक्ट करके दिखा। हम्म, जो ऑप्शन है जैसे मान लो कि यहाँ पे जेंडर किसी का कंट्री होता, कंट्री की एक अलग टेबल होती, तो वो कैसे हाँ दिखाते हाँ, फिर तब। वो मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। ये नोट बन डाउन गया हो। हमारा। हाँ, ये चला गया हमारे ग्लोबल ऑप्शन सेट में, ठीक है। ये ग्लोबल ऑप्शन सेट के अंदर चला गया। रुक जाओ, मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर आता है ये डिलीट और रिमूव। अगर मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये बिदना हमारे सीआरएम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन सॉल्यूशन पे चला जाएगा। अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया तो ये पूरे सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। फिर इसे हम रोल बैक नहीं कर सकते, ना ही कहीं से ऐड कर सकते। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं कि आप डिलीट कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। तो अभी मैंने इसे डिलीट किया क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी एंटिटी में आया, मैंने फॉर्म में डाला जेंडर ऑप्शन सेट। हाँ देखो, यहाँ पे काफी सारे दिखाई दे रहे हैं ना, वहां पे पता नहीं क्या है उनका भी वो। दे आर ऑल्सो आई थिंक माइग्रेटिंग स्लोली स्लोली, सो दैट्स ऑप्शन सेट ऑप्शन सेट ऑप्शन सेट, राइट। ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, या न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है वैल्यू के अंदर कुछ भी डाल सकते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम लेता है, राइट। अगर आप चाहो तो कोई मेल की 1 2 3 4 करना है, लेकिन 1 2 3 4 और हो सकता है कि और भी कई जगह पर हो। लेकिन ये आप ग्लोबल ऑप्शन सेट नहीं कर बना रहे। तो अगर ये आपकी पर्टिकुलर एंटिटी में तो ठीक है। अगर आपने ये ग्लोबल ऑप्शन सेट की तरह यूज किया, मतलब जो पूरे सिस्टम में आपका वही चलेगा, तो कई जगह पे 1 2 3 हो सकता है। तो आदमी क्या करता है, जो नया नंबर जनरेट होता है मोस्ट ऑफ जगह पे वही लेते। या आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर वो अलर्ट मैसेज देता है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे बट यहाँ पे फिर वैल्यू जब देखेंगे तो मेल की वैल्यू या कुछ नंबर्स में आ रही होगी, वो ठीक है करेक्ट बेस्ट है। करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 देखना, तो एक पॉपअप देगा मुझे। देखा, ये आ गया पॉपअप। क्योंकि जो मैंने प्रीफिक्स डिफाइन कर रखा था वो अपना इतने नंबर से स्टार्ट कर रखा था, फिर भी बोला कि कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो मैंने कहा कैंसिल। तो जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो वो आ जाएगा, वरना मैं 3 भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे 7 क्लोज कर दिया। और क्या था, चलो अभी यहाँ से देख लेते हैं न्यू। ऑप्शन सेट, हाँ ये देखो, ये आ रहा है ना मल्टी ऑप्शन सेट, वहां पे नहीं दिखाई दे रहा था हमें। ठीक है, मल्टी ऑप्शन सेट में मैंने लिखा कैंडिडेट लोकेशन, कैंडिडेट लोकेशन। लोकेशन नहीं, कैंडिडेट की मल्टीपल क्या हो सकते हैं, स्किल हो सकते हैं, स्किल। तो मैंने यहाँ लिखा मल्टी, ये भी वही है, ठीक है। मैंने लिखा C# डॉट SQL एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन पैटर्न, ठीक है। एंड फुल स्टैक एक और डाल देते हैं, फुल स्टैक, फुल स्टैक, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। And अब देखो यहाँ पे बता रहा ना, ये बता रहा है, ये दिखा रहा है यूज एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेट, राइट। कई जगह पे क्या है कि अगर हमने कहा यस, तो जो ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइन है वो वाले हमें सारे के सारे ऑप्शन सेट दिखाई देगा यहाँ पे कि हाँ हमको ये चाहिए है या नहीं चाहिए।
मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले। अब आपने क्या किया कि सारे के सारे ग्लोबल ऑप्शन सेट में सपोज करो आपने डाल दिए, तो आप वहाँ का रेफरेंस भी यहाँ पे ले सकते हैं। आई मीन नो नीड टू क्रिएट एवरी टाइम अ न्यू ऑप्शन सेट। और इसके अंदर एक चीज और है, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सर्चेबल, राइट? सर्चेबल यस और नो, राइट? जब भी हम कोई फील्ड बना रहे हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है सर्चेबल यस और नो, तो ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और है, फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये ऑप्शनल, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिकमेंडेड है, बिजनेस रिक्वायर्ड है। अगर अभी मैं सारे के सारे फील्ड ऑप्शनल में डाल रहा हूँ, अगर मैंने इसे रिक्वायर्ड कर दिया तो वो फील्ड मैंडेटरी ही रहेगा मेरा इन दोनों केस में। ऑप्शनल वाले में ऐसा कोई नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर मैंने कर दिया कि नहीं मुझे स्किल कंपलसरी है किसी जगह पे, तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और ये फील्ड सिक्योरिटी में देख रहे हैं, फील्ड सिक्योरिटी मीन्स के हमको वो फील्ड सिक्योर करना है या नहीं करना है। जैसे मैं बताऊंगा आगे अभी, ठीक है, कि ये फील्ड सभी को दिखाई दे ना दे। अब जैसे ये ऑडिटिंग भी है, जब हम टेबल भी क्रिएट करते हैं तो उस समय भी ऑडिटिंग करते हैं, और बाद में जब हम फील्ड बनाएंगे तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं कि हाँ इसकी मुझे ऑडिटिंग इनेबल चाहिए या नहीं चाहिए। ऑडिटिंग मतलब कौन अपडेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो भी हम पूरा ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसे भी सेव एंड न्यू करता हूँ। अब कौन सा बच्चा है मेरा, होल नंबर, ये डेसिमल नंबर, होल नंबर नंबर है, डेसिमल है, ठीक है। करेंसी, मल्टी लाइन टैक्स, डेट एंड टाइम हमने कर ही लिया है। और सिंगल लाइन टेस्ट हो गया, ऑप्शन सेट हो गया, मल्टी, अच्छा टू ऑप्शन सेट हम लेते हैं कि कैंडिडेट इज अ वर्किंग और नॉट, कैंडिडेट वर्क स्टेटस। तो ये मैंने सपोज करो एक रिक्वायर्ड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो हम इसे सिर्फ यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पे नो, राइट? तो हम चाहें तो इसे यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको ऊपर नीचे भी करना है तो यहाँ पे जाके सेलेक्ट करूंगा मैं, नो ऊपर है जैसे अभी, तो हम उसे भी अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ये अब इसकी देखो वैल्यू मैं खोलूंगा तो इसकी वैल्यू 0 और 1 में आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे बुलन फील्ड है। ये वैल्यू यहाँ पे देखो डिसेबल है, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने ये किया, ये सेव है, ये सेव एंड क्लोज है, और ये सेव एंड न्यू एंड क्रिएट न्यू है फील्ड, ठीक है। अब ये नया आ गया, अब कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। इमेज यूज नहीं करते हैं, होल नंबर नंबर हमने कर ही लिया है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर, डेट ऑफ डाल ही दिया था ना मैंने, हाँ। ये वाला मैं लुकअप वाला मैं बाद में बताऊंगा। एक मिनट रुकना जरा, मैं गेट लगा दूं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अभी, यहाँ तक? यस यस यस। है नहीं। हाँ, अभी मैंने इसके ऊपर और कुछ नहीं लिखा, हालांकि इसमें और भी कुछ बताऊंगा मैं धीरे धीरे। पहले अभी मैं जो बेसिक बता रहा वो बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये फॉर्म है मेरा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये ओपन मेन फॉर्म, ये मेरा मेन फॉर्म है जिसमें ये कुछ चीजें मैंडेटरी हैं। यहाँ पे हेडर है, और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, यहाँ पे देखना अभी। अभी यहाँ पे जो मैंने ये सारे के सारे बनाए हैं, तो यहाँ पे देखो बता रहा है वो शो ओनली अनयूज्ड फील्ड, राइट? अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो एक दो फील्ड बढ़ गए होंगे, देखो घट रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं कुछ फील्ड, कि मतलब जो फॉर्म पे यूज है वो भी आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, राइट? तो अब जो मैंने फील्ड बनाए हैं वो मुझे अपने फॉर्म पे लेके आना है, तो मैंने डाला इसके अंदर एक न्यू, इंसर्ट किया मैं। थोड़ा सा ये कैसे होता है साला, सेक्शन,
मैंने सेक्शन में डालूं, 3 कॉलम में डालूं? सेक्शन ही डालते हैं, ठीक है। ये मैंने सेक्शन डाला। सेक्शन डालते हैं और सेक्शन के अंदर जाके वो फील्ड को ड्रैग करते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अभी मैंने ये सेक्शन, मुझे क्या 3 कॉलम वाला चाहिए, वो मैं देख रहा था कि सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। 3 कॉलम इसके अंदर, नहीं नहीं इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम अंडू भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक अंडू का बटन आता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन के अंदर आना तो चाहिए। मुझे सेक्शन में 3 कॉलम चाहिए एक्चुअली, पहले 3 कॉलम कॉलम डाल दो वाला। फिर सेक्शन, देखो वो वैसे लेते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ अरे है ना ये 3 कॉलम 4 कॉलम, वो मैंने सिंगल वाला सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे गया मैंने डाला 3 कॉलम, ठीक है। एक एक दो तीन आ गए, ठीक है। मैंने इसका नेम चेंज किया, कैंडिडेट डिटेल, कैंडिडेट डिटेल। ये कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली रहता है, ठीक है। सो ऑन दिस सेक्शन ऑन फॉर्म, ये अब बस मुझे क्या करना है, कैंडिडेट का यहाँ से पहले मैंने पैन कार्ड डाला, कैंडिडेट का पैन कार्ड हो गया, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस डाला, कैंडिडेट का जेंडर डाला, ठीक है। नेम हमारा ऑलरेडी है ही यहाँ पर, ठीक है। और फुटर में मैंने स्टेटस डाल दिया, स्टेटस एंड स्टेटस रीजन। नीचे नहीं आएगा क्या ये? नहीं आ रहा, डालना ठीक है। पड़ेगा ना, हम्म? सेक्शन डालना पड़ेगा। हाँ नहीं आ रहा ना वो उधर पे। अब मुझे एक और डाला मैंने इसके नीचे, इसके लिए भी नहीं ले रहा, आना तो चाहिए यार। इसके लिए आ गया, और यहाँ पे कैंडिडेट का ये आ गया। कौन सा वाला बचा है अभी हमारा? सारे हो गए। एक्सपीरियंस 2 बार डाल दिया था। मेरे 3 बार एक्सपीरियंस, डाल दी। अच्छा वो दिखाई नहीं दे रहा था ना। डीओ भी नहीं डली ना, डीओ भी नहीं डली यार। हम्म, ठीक है हाँ। तो अभी ये हमने सारे यहाँ पे फॉर्म, ये वैल्यू सारी की सारी ड्रैग कर दिए। ये क्यों नहीं हो रहा? एक और वर्क स्टेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक सेव है, सेव एज है, और सेव क्लोज है, पब्लिश है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर मैंने मेन फॉर्म खोला और मुझे कोई दूसरा फॉर्म बनाना है, जैसे अभी मेरा ये फॉर्म बना नहीं है पूरा, क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं किया, सिर्फ वैल्यू ड्रैग करके दी है जो मेरा मेन फॉर्म था। पहले मैंने इसे सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पब्लिश करना पड़ेगा सेव के बाद, तो मैं यहाँ से करूंगा इसे पब्लिश। ठीक है, अभी ये मेरा पब्लिश हो गया। अब सपोज करो इसी, अभी मैंने जो फॉर्म का नाम दिया अपना, ये कैंडिडेट दिया, अब मैंने इसे दूसरा बताना है कि कैंडिडेट डिटेल, तो मैंने इसी को सेव किया, सेव एज में जा रहा मैंने नेम दिया कैंडिडेट डिटेल, कैंडिडेट बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल। सेव, पब्लिश। आ गया मेरा सोल्यूशन यहाँ पे। हम्म, एक फॉर्म पार आ गया ना। एक मेरा पहले इंफॉर्मेशन फॉर्म था, फिर मैंने एक बनाया कैंडिडेट बेसिक डिटेल फॉर्म, दिख रहा ना ये वाला। अब ये फॉर्म मैंने क्यों बनाया? एक ही फॉर्म से तो काम चल सकता था ना मेरा, तो मुझे अलग अलग फॉर्म बनाने की जरूरत क्या है?
क्या होता है कि अब जब आपने ये देखा होगा, जब मैं फॉर्म बना रहा ना, यहाँ पे एक है इनेबल सिक्योरिटी रोल, राइट। जब हम लोग सिक्योरिटी रोल पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो अब जैसे सपोज करो अजीत सर हमारे सीनियर हैं, तो हमने कहा कि भाई ये वाला फॉर्म सीनियर को देखना चाहिए और हम सब जूनियर हैं, तो जूनियर के लिए अलग फॉर्म बना दिया। और उसमें से हमने चार, अच्छा, मेन फॉर्म को कॉपी करके ही सारे फॉर्म बनेंगे। तो फिर उसमें से वो लोग क्या करते, फील्ड डिलीट कर देते कि ये हमारा मेन फॉर्म है, ये एडमिन को देखना है, या इस वाली फील्ड से ये वैल्यू निकालनी है, और बकाया फॉर्म पे सारी वैल्यू निकाल के सिर्फ बेसिक फॉर्म बना देते कि ये कोई सा भी देख ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। तो जब हम सिक्योरिटी रोल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास ट्रायल वर्जन है तो हमारे पास कोई दूसरा यूजर नहीं होगा, वरना यहाँ पर हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि ये हमारे बाय डिफॉल्ट जितने भी सिक्योरिटी रोल हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमारे इस टीम को बस सिर्फ ये वाला ही फॉर्म देखना चाहिए जो बेसिक वाला मैंने बताया है, बकाया उसे किसी को नहीं दिलाएगा। और ये आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले टू एवरीवन, या तो हम किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी रोल को वो फॉर्म दे सकते हैं, और या नहीं भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना क्रिटिकल है। कि सारे, अब जैसे किसी में कस्टमर की बैंकिंग डिटेल है तो वो थोड़ी सबको कोई देगा, वो तो कहीं पे भी नहीं देगा, तो वो सिर्फ उन्हीं लोग को दिया, वो लोग अपने पास रखते जो हायर मैनेजमेंट के, जैसे एडमिन हो गया या जो भी सिक्योरिटी रोल आप बनाए। यहाँ तक के बाद अब मैं इस फॉर्म में कुछ डेटा डालते हैं, चलो। अच्छा, ये अभी यहाँ तक समझ में आ गया, अभी हमारे दो फॉर्म बन गए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। मैं और भी देख रहा हूँ कि और क्या बता यानी सकूं यहाँ। एक मिनट रुको हाँ। ना, कैंडिडेट का भी हम्म एक फॉर्म बनाया था आपने, वो क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ये है ना मेन फॉर्म, ये कैंडिडेट तो के अंदर ही मेन फॉर्म है सर। अच्छा, जो भी बनेगा ये मेन फॉर्म का ही कॉपी बनेगा यहाँ पे। ओके, ठीक। अब और अनिल यहाँ पे कैंडिडेट के दो फॉर्म है, एक बेसिक है, बेसिक डिटेल है, और एक इंफॉर्मेशन है। इनमें से मेन कौन सा? बेसिक कौन सा है? देखो ये तो हमने कैंडिडेट उसका बेसिक। कॉपी करके बनाया था ना, मैंने बताया था कि अगर हमें कोई नया फॉर्म बनाना है तो उसी को हम कॉपी कर देते, बताया था ना मैंने। ओके ओके। तो अब जैसे मेरा, सिलेबस कर देते। हाँ, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के मेन फॉर्म बनते हैं सर, जब जहाँ पे क्या होता है कि हर यूजर को अलग अलग परमिशन के हिसाब से उसे शेयर करने पड़ते हैं। अभी मैंने एक चीज और नहीं बताई, अब हाँ, अब इसके अंदर जाके हम व्यू भी सर यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। व्यू का है मेरा व्यू, तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट व्यू बने हुए हैं सारे के सारे। अब जैसे मैंने कहा एक न्यू व्यू बनाना है मुझे, ठीक है। व्यू का क्या मतलब है यहाँ पे? व्यू क्या मतलब? व्यू मतलब जैसे एसक्यूएल में हमारा व्यू बनता है ना, क्या नाम ने व्यू बना के दे दिया तो उसे कोई भी एक्सेस कर सके, बस सिर्फ मॉडिफाई नहीं कर सकता है, राइट। तो वही व्यू यहाँ पर है। अब जैसे मैंने यहाँ पर व्यू का नाम दिया कैंडिडेट नॉट वर्किंग, कैंडिडेट नॉट वर्किंग। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मेरा फिल्टर क्राइटेरिया है, देखो यहाँ पे कौन कौन से कॉलम ऐड करना है और फिल्टर क्राइटेरिया। तो मैं जाता हूँ फिल्टर क्राइटेरिया में, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैंडिडेट वर्किंग था ना, कहीं पे डाला था ना हमने वर्क स्टेटस, हाँ, कैंडिडेट वर्क स्टेटस नो। और मैंने इसे, मैं और भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि किस किस कंडीशन में इसमें ग्रुप ग्रुप वो आएंगे धीरे धीरे, मैं भी सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक। मैंने कहा ये, अब मैंने कहा ये मेरा भी सिर्फ एक फील्ड दिखाई दे रही है, मैंने कहा इसमें कौन कौन से कॉलम मुझे ऐड करना है। तो मैंने कहा वर्क स्टेटस तो चाहिए ही चाहिए, टोटल एक्सपीरियंस डीओबी इतना डाल देते हैं, और स्किल मैंडेटरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने ये डाल दिए, और मैंने इसे सेव भी कर सकते हैं, सेव एंड क्लोज भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो वो यहाँ से यू कैन चूज दिस, ठीक है। तो अभी ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि डेटा कैसा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी कहाँ गया मैं, कहाँ था मेरा ये एडवांस वाला है।
पब्लिश नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। अच्छा, जब सारे कस्टमाइजेशन के बाद आपको पब्लिश करना ही करना है, तो अब आ रहा है यहाँ पे पब्लिश ऑल कस्टमाइजेशन, राइट। तो जो भी हमने अभी तक इस सॉल्यूशन के अंदर किया, अब ये मर्ज हो रहा है हमारे पूरे सिस्टम में। अब यहाँ पे सबसे अच्छा है कि यहाँ पे हमें वो बैक एंड और फ्रंट एंड कुछ मेंटेन नहीं करना है। जैसे कि CSS हिल गई या वो कुछ हिल गया। CRM में मैं इतने दिन से हूँ, 8 मतलब 7.5 साल से कभी किसी ने नहीं कहा कि ये CSS लगा दो। क्योंकि बिजनेस को मेन मोटो है कि भाई हमारा बिजनेस कैसे रन हो रहा है, ना कोई UI पे। बस सिर्फ ये होता है कि डिजाइनिंग फॉर्म की कैसे करना है। जैसे मैंने एक सेक्शन डाला, उसमें बहुत क्रिटिकल हो सकती है वो डिजाइन, वो तो मैंने एक सिंपल बनाई है। जैसे .NET में जैसे हम लोग बनाते हैं, तो वो एक एक चीज भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये इस सेक्शन में ये। अब जैसे चैनल से चैनल सेल है जैसे, तो उसके अंदर यहाँ पे मुझे ये दिखाना है, यहाँ पे ये दिखाना है, तो उस टाइप से भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अनिल, जैसे अभी मोस्ट ऑफ द चीजें जो शायद फ्रंट एंड से हो जा रही है, तो फिर इसमें प्रोग्रामिंग की कैसे जरूरत पड़ती है? हाँ सर, वो आएगी ना वो। सर यही तो चीज है कि लोगों को अब जो बिजनेस वाले रहते हैं ना, उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है कि क्या है, दे आर जस्ट ब्लैंक। उनको कोई मतलब ही नहीं है मतलब बिजनेस फ्रंट एंड वालों। से बैक एंड से उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो आउटपुट से मतलब है, ऐसे चाहिए मेरे को बस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब क्या है कि हाँ, अब ये पब्लिश हो गया। एक बार मैं इसे रिफ्रेश भी कर देता हूँ इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, हमेशा हार्ड रिफ्रेश होता है, नॉर्मल रिफ्रेश काम नहीं करता है। जैसे कब जब भी आप कुछ पब्लिश वगैरह करेंगे, तो ये हार्ड रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, या कैश और हार्ड रीलोड। मैंने डाला कैंडिडेट। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को मेल लिखना है क्या, हार्ड रिफ्रेश के बिना चलता नहीं तुम्हारा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये इनका मतलब है। कैंडिडेट, कैंडिडेट मेरा फॉर्म आ गया। कैंडिडेट के अंदर कोई डेटा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे न्यू खोला, तो ये मेरा वैसा ही फॉर्म बनेगा जैसा मैंने वहाँ पे इनसफिशिएंट परमिशन। मुझे को परमिशन देंगे, फिर किसे परमिशन है भाई? नहीं व्यू खोला है, फॉर्म खोला है तुमने? नहीं, ये तो फॉर्म ही होता है सर यहाँ से। ये मुझे व्यू लग रहा है, इसमें तो नेम और वो आ रहा है ना सिर्फ। नहीं 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 नहीं, ये कैंडिडेट है ना हमारा, इसके अंदर मेन फॉर्म आता है। व्यू तो हमको व्यू नहीं है, यहाँ से रिजल्ट दिखाई देते हैं। अच्छा रुको, मैं अकाउंट में जाके देखूँ, अकाउंट में कुछ आ रहा क्या? क्योंकि ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना अनिल, क्यूरी व्यू, सेव व्यू, और व्यू के हिसाब से दिख रहे हैं मुझे लग नहीं 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 सर, ये रिकॉर्ड है। एक कैंडिडेट का रहा है। क्यों नहीं ऊपर दिख रहा? ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, देख, क्यूरी दिख रहा है, सेव व्यू हाँ दिख रहा हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं बताऊंगा अभी। वो बहुत बड़ी चीज है सर इसमें। मतलब मुझे सीखने में तो बहुत टाइम लग गया था। अब आप लोग एक्सपर्ट हो, बात अलग है। हाँ, अब आया, ये तो आ रहा है। इसके बाद न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा ये? या तो कुछ सिक्योरिटी रोल तो नहीं छूट गया? अब आया, ठीक है, शायद वो पब्लिश नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जैसा हमने ये क्रिएट किया था ना वहाँ पे, वैसे ही दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ये हमेशा हमें ऑफ करना पड़ता है, वरना वो आता रहता है। ठीक है, तो मैंने दिया अनिल कुमार, पैन नंबर। अब यहाँ पे देखो ये आने लगा है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कुछ दिन मतलब 1 साल पहले लॉन्च किया है। पहले यहाँ पे ये इस टाइप से हम नहीं कर सकते थे। मल्टी सिलेक्ट कहते हैं इसे, मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन सेट, राइट। और जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसके अंदर नंबर। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा ना, ये मैंडेटरी लिख के आ गया ऑटोमेटिकली। दिख रहा है आपको? अगर मैं अभी रिकॉर्ड सेव करूंगा, तो ये बोलेगा शायद
रिकॉर्ड सेव कैसे हो गया? डिफॉल्ट अच्छा वो सेट है ना उसका। हाँ हाँ, वो हमें दूसरे में लगाना था एक्चुअली। तो ये कंपलसरी फील्ड है हमारे लिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ तक ये डेट ऑफ बर्थ भी लगा दी। अच्छा यहाँ पे डेट और टाइम भी आता है, ये भी एक दिक्कत है इसकी माइक्रोसॉफ्ट की हमेशा, कि जब भी ये डेट डालेंगे तो टाइम बाय डिफॉल्ट आता है। जेंडर में मैंने मेल दिया, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे डेटा सेव हो गया, सेव एंड क्लोज। और यहाँ से जाके न्यू कर सकते हैं, और यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो फिर डेटा नहीं आएगा, ठीक है। रिफ्रेश में मतलब कई सारे फॉर्म होते हैं, जब एक फॉर्म के साथ तो मतलब कहीं डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो वहां से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अभी तक ये मेरा डेटा उस अच्छा ये जो है ये एडवांस फाइंड कहलाता है। मैं कैसे गया था ये देख लो, तो क्योंकि ये भी थोड़ा सा, पहले तो हमको ये क्लासिक विंडो में जाना है, ठीक है। नॉर्मली होता है मेक डॉट पावर, मेक डॉट, ये याद रखो क्योंकि आप लोग करोगे ना तो आपको कैसे जाना है, राइट। तो ये मैं लिंक भेज देता हूँ आपके टीम पे, तो नहीं जाएंगे, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है। इसमें जाना है, उसके बाद फिर से यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाओगे आप, ठीक है। एडवांस सेटिंग के बाद फिर से एक ये पूरा सिस्टम खुलेगा, इसके बाद ये आपका एडवांस फाइंड खुलेगा यहाँ से। अब मैंने फिर से यहाँ पे डाला कैंडिडेट कैंडिडेट डाला, तो अब मेरा कैंडिडेट एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई मीन कैंडिडेट की बेसिक डिटेल, अब मुझे इसके अंदर कॉलम एडिट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा नहीं यार मुझे एक्सपीरियंस वगैरह भी दिखाना है, सब कुछ दिखाना है। तो मैं यहाँ पे गया, आई विल ऐड, सारे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल कॉलम आ गए मेरे इसमें। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये इस टाइप से दिखाई देगा। अब जो सर आप बोल रहे थे ना कि क्या बोल रहे थे आप, ये क्वेरी और फिल्टर व्यू, राइट। अब इसके अंदर होती है कंडीशन है, ठीक है। अब मैं एक दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा क्रिएटेड ऑन, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो अब ये क्रिएटेड ऑन, ये कब क्रिएट हुआ है, तो हम पर्टिकुलर डेट डाल सकते हैं, ठीक है। ऑन आफ्टर, ऑन बिफोर, एस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट, नेक्स्ट 7 डे, लास्ट 7, सॉरी, जैसे कुछ होगा किसी केस में हमें नेक्स्ट 7 डे, लास्ट 7 डे। अब जैसे यहाँ पे है लास्ट एक्स आर, राइट। तो हम लास्ट एक्स आर भी डाल सकते हैं कि कितना हमारा लास्ट एक्स आर में क्रिएट हुआ है। ये सारे के सारे फील्ड बस सिर्फ आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा क्रिएटेड टुडे, राइट। मैंने कहा डेट डाली आज की, तो ये मुझे एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी हम क्रिएटेड ऑन पे चल रहा है अभी, ठीक है। अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं जाता हूँ इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने कितनी डाली थी, 24 डाली थी ना। मैं गया यहाँ पे, मैंने डाला 5 तारीख को, ठीक है। इसे सेव करके क्लोज कर दिया। अब मैं गया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अब मैंने कहा मुझे उन कैंडिडेट के डेटा चाहिए जो इस मंथ में बॉन्ड हुए हैं, ठीक है। दिस मंथ आ रहा कहीं पे, दिस मंथ, दिस मंथ, ठीक है। तो मैंने डाला दिस मंथ, तो अनिल कुमार आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मतलब तो डेट के यहाँ पे जैसे ही वो अपने आप पहचान लेगा कि डेट है क्या है, और उसके बाद वो सारे के सारे ये ऑप्शन सेट ही दिखाई देगा। ये आपको आगे भी काम में आएंगे, क्योंकि ये जब मैं कोडिंग बताऊंगा ना तो वहाँ पे यूज है इनका। और अब मैंने कहा कि जो कैंडिडेट दिस मंथ है और उसका कैंडिडेट का नेम आ रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे नेम आ रहा होगा, नेम। अब मैंने लिखा नेम, जैसे ही उसने देखा कि नेम है, तो नेम में क्या क्या हो सकता है, या तो इक्वल टू होगा, डज नॉट इक्वल टू, कंटेन, डज नॉट कंटेन, बिगिन विद दिस। ये ऑटोमेटिकली उसने पहचान लिया कि ये स्किल टाइप, स्ट्रिंग टाइप का कॉलम है, तो इसमें क्या क्या है। अब जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे डाला मैंने अजीत। अब अजीत नाम का डेटा नहीं मिलेगा उसे, तो नहीं आएगा। अब मैंने अभी मैं इक्वल टू में डाला, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने डाला यहाँ पे अनिल, क्योंकि मेरा नाम शायद अनिल कुमार डाला मैंने ना, तो अभी नहीं आएगा। अब मैंने लिखा यहाँ पे कंटेन। अब मेरी दो कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पे, ठीक है। कि पहला कि मेरा डेट ऑफ मंथ दिस मंथ है, और नेम मेरा कंटेन है अनिल कुमार, राइट।
अब मैंने तीसरी कंडीशन और लगाई, कैंडिडेट स्किल। कहाँ गया कैंडिडेट स्किल, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये स्किल किया तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस टाइप से चेक करना है, ठीक है। अभी मेरे पास, मैंने भी एसक्यूएल नहीं डाला था ना अपने में, मैंने डाला यहाँ पे एसक्यूएल, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। अब मैंने कहा कि या तो मेरी दो कंडीशन मैच करें या ये मैच करे, करेक्ट। अब मैंने ऐसी कंडीशन लगानी है कि या तो ये मैच करे या ये मैच करे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुपिंग करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट रो और अब मैंने इसको फिर से सिलेक्ट ग्रुप, सिलेक्ट, और फिर इसको फिर से कर दिया और, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, या तो मेरी ये कंडीशन मैच करे या ये कंडीशन मैच करे, यही तो होता है ना, और नॉर्मली, है ना, हाँ ठीक है। तो अनिल कुमार आ गया। तो ये अब जैसे अभी मैंने ये दो कंडीशन लगाई ना सर, कभी कभी क्या होता है जब बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स डेटा हमें रिट्रीव करना होता है ना, तो अब हमारे टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ने लगती है कि नहीं यार ये हम नहीं कर पा रहे। तो यार अब किसी टेक्निकल बंदे को बुलाओ, वही साला, आई मीन सॉरी, वही लंबी चौड़ी क्वेरी लिख सकता है कि जहाँ पे मतलब ये तो अभी मैंने दो हैं को 10-10 लगे रहते हैं, 20-20 तक देखे हैं मैंने एक बार। तो लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये मैंने एक बार बना लिया, अब जैसे कि यार मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े, तो मैं गया यहाँ पे तो आता है मेरा सेव एज व्यू आ रहा होगा कहीं पे, सेव एज, ये आ गया सेव एज व्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया फिल्टर व्यू, फिल्टर व्यू कैंडिडेट नेम विथ नेम और स्किल, ठीक है। अब मैं इसे बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से गया, मैंने लिखा कैंडिडेट, कैंडिडेट। अब वो मेरा व्यू यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, ये आ गया ना, फिल्टर व्यू कैंडिडेट नेम और स्किल, जैसे मैं करूंगा तो सारी कंडीशन मेरी स्किल आ जाएगी। अब जैसे ये वाला व्यू भी मुझे किसी पर्टिकुलर टीम को शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मेरा यहाँ पे आता है ये मेरा व्यू है। तो मैंने कहा नहीं यार ये असाइन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे अजीत सर को असाइन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा जो भी मेरा यूजर होगा उस यूजर को मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, सपोज करो यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैंने इसको लिया और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसे ऐड किया, और ये आ गया ना यहाँ पे। अगर कोई पर्टिकुलर यूजर होगा मेरा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये सब फंक्शनल वालों को भी सीख जाते हैं धीरे धीरे। तो मैं यहाँ से इसे शेयर कर दूंगा, लेकिन मैंने असाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं एक चीज, ठीक है। अब जैसे मेरा इसका डेटा आ रहा है, तो अब जैसे ये डेटा मुझे एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया, जस्ट आई डाउनलोड द वर्कशीट, तो ये मेरा डेटा मुझे एक्सेल में मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो भी तुम कॉलम वॉलम डालोगे, आई मीन वट एवर द, मतलब समटाइम रिक्वायरमेंट आती है कि भाई ये डेटा निकाल के दो कि कितना कितना टाइप का है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, मतलब एज अ बेसिक ही है, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, और इसमें क्या था, ये रिजल्ट का, ये सेव व्यू का क्वेरी है। अच्छा, अब जैसे आज मैं सिर्फ फॉर्म ही रख रहा हूँ, फॉर्म कस्टमाइजेशन के आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अभी टाइम है ना, 30 मिनट है आप लोग के पास। वोट डालने आना है भाई हमें। ओ, ओके ओके, छुट्टी आज आपकी? नहीं छुट्टी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा, हाँ। पता नहीं आप भी हमें तो अरे 9:30 को 40 कॉल है ना अजीत सर अपना। 20 मिनट दे दो, हाँ 20 मिनट दे दो, 9:30। 20 मिनट में 20 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो सारा काम खत्म हो जाएगा फॉर्म डिजाइनिंग का। ठीक है। मैं भी ट्राई करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी हमने जो बनाई थी सिर्फ एक एंटिटी बनाई थी कैंडिडेट, ठीक है। अब मुझे बनाना है कैंडिडेट एक्सपीरियंस। 2 मिनट दो सर, मैं बनाता हूँ, ठीक है।
अच्छा यहाँ तक तो कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है ना अभी तक? नहीं एक बार करके देखेंगे तो पूछते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने वो सारे के सारे यूआरएल भी दिए हैं, ठीक है, मैंने दिया है यहाँ पे कैंडिडेट एक्सपीरियंस। और इसमें जैसे मल्टीपल जैसे डेवलपर है वो सेम फॉर्म पे काम कर सकते हैं अभी, जैसे अभी तू कर रहा है कैंडिडेट अच्छा सेम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, रुको, वो भी बता देता हूँ मैं। रुको, वो अच्छा बताया आपने। और अनिल यार पता तुम है ये नहीं नए मेरे को वाले खैर। व्यू पे करके देखना, नया व्यू है ना ये, हाँ ताकि ये बार बार उधर ना जाना पड़े। हाँ, एक्चुअली यार ये पता है माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च, वो भी अभी क्या है, पूरा का पूरा माइग्रेट करके वो इस पे लाना चाह रहे हैं। तो अभी क्या है, मैं भी पुराना डेवलपर हूँ तो मुझे भी वहीं पे थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। अच्छा देखो सर, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्लोन और पैच बनते हैं। क्लोन और पैच कहाँ से आता है? यहाँ से क्लोन, राइट। अच्छा, क्लोन और पैच क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा सा मैं काफी दिन से किया नहीं है, पहले तो किया था। तो ये इसकी कॉपी बना देता है। अब जैसे मैंने कहा क्लोन में होती है पैच में होती है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। क्लोन होता होगा सर, चलो ठीक है, क्लोन अब पैच करते क्या करते, हाँ। तो अब देखो इसका ये वर्जन चेंज हो गया, और जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो इसका ये नया एक और बना देगा, डिजिटल रिज्यूम बॉक्स, ठीक है। ये अब मेरा, अब इसका अब जैसे मैंने कहा ये अजीत सर इस पे काम करेंगे, और हाँ एक मैंने एक और बनाया, तो मैंने कहा इसका नाम मैं अंडरस्कोर दानिश, दानिश, ठीक है। क्या बोल रहा? अच्छा, पैच नहीं ले रहा वो। नहीं वर्जन नंबर सेम है, वर्जन चेंज करना पड़ेगा। हाँ वर्जन तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये अब ये इस पे दानिश काम करेगा, ठीक है, इस पे कोई भी काम कर ले। अब क्या कि दानिश ने जब अपना काम कर लिया पूरा, ठीक है, तो हमको इसको जाके यहाँ पे जाके बस सिर्फ अभी क्लोन किया था, पैच कर देंगे तो ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। समझ में आया ये? ये वो गिट की तरह हो गया, मतलब वो ब्रांचेज बनाते हैं, ब्रांचेज को उसने मर्ज कर दिया हाँ मेन। हाँ आपस हाँ में तो ब्रांच मर्ज कर दो बाद में। हाँ, तो अपने अपने सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। मुझे एक चीज जो बनानी, चलो ठीक है, अगर आपकी कॉल है तो फिर कोई नहीं, ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। 1 घंटा हो गया, बहुत एक से ज्यादा समझ जाएगा तो फिर ऊपर से नहीं आधी चीजें। अभी मैंने वैसा कुछ बताया नहीं है, ये तो सर आप लोग को आ ही जाएगा इतनी जल्दी, मुझे पता है अरे ऐसा नहीं भाई, हम तो लोग भी फिर तो भी इधर मतलब सीखने में। बहुत ज्यादा भी मगअप नहीं करना चाहिए ना भाई, बहुत बाकी चीजें भी थोड़ा। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे हाँ स्लोली। धीरे लगे। नहीं मतलब अच्छा था ना आज का सेशन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा ना? हाँ बढ़िया था। बट अनिल हाँ तुम यार वो नए वाले वर्जन पे सीख लो तो, क्योंकि फिर हम लोग के हाँ, लिए नहीं बड़ी नहीं, प्रॉब्लम है, हमको तो पुराना आता भी नहीं है ना। हाँ नहीं नहीं, मुझे भी सीखना है।